اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ایپیسوڈ نمبر 16 پیش خدمت ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں سب سے پہلے میں ہر اس بچے کے لیے جس بچے کو ٹیررسٹ نے یا تو شہید کر دیا یا زخمی کر دیا، اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جن کو ڈرون حملوں میں یا تو شہید کر دیا گیا یا ان کو زخمی کیا گیا۔ کچھ چند روز پہلے ملالہ بچی جس کو سوات میں دوسری بچیوں کے ساتھ زخمی کر دیا گیا، ٹی وی پر یا اخبارات کے اندر کافی شور مچا ہوا ہے، لیکن افسوس کہ اس بچی کے علاوہ اور بھی بچیاں زخمی ہوئیں۔ افسوس کہ اور بھی بچے، چاہے وہ طالبان کے ہوں چاہے وہ کسی گروپ سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب بچوں کو معصوم ڈکلیئر کیا یا اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو فرشتے کا مقام دے گا تو پھر ہم انسان کیسے ان کو ایسا مقام کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہر بچے کے ساتھ جب بھی کوئی زیادتی ہو یا اس کو شہید کر دیا جائے یا اس کو زخمی کر دیا جائے تو ہم اس کی مذمت کریں۔ لہٰذا میں ہر بچے کے شہادت یا اس کے زخمی ہونے پر پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں الطاف حسین کی ایک چھوٹی سی تقریر جو اس نے چند سال پہلے کی اور اس کو ایک ریفرنس کے طور پہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور بقایا بات اس کے بعد کہوں گی۔ تو یہ 21ویں صدی کا زمانہ ہے، ہاتھ ملاؤ گے ہاتھ ملائیں گے، دل ملاؤ گے دل ملائیں گے، پیار کرو گے پیار کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ ناظرین، آپ نے الطاف حسین کی یہ بکواس سنی؟ مجھے بتائیے کہ وہ کون سے وڈیرے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ پچھلے 24 سالوں میں کس وڈیرے کے خلاف اس نے کوئی کام کیا ہے؟ اس پچھلے 24 سالوں میں اس نے ہمیشہ حکومت کا حصہ بن کر عیاشیاں کی ہیں اور اپنے مفادات حاصل کیے، لیکن کبھی بھی آج تک لوگوں کے رائٹس کی جو بات کیا کرتا تھا کسی کو نہیں دلایا۔ جو کراچی کا غریب آدمی تھا آج غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایون وہ غریب جن کو کبھی کوئی زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ یا عید الاضحیٰ کے دنوں میں کھال مل جاتی تھی، جن کو وہ بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، وہ بھی آج کل چھین کر اپنے پاس لندن لے جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہی ہم کریں گے۔ میں الطاف حسین سے یہ پوچھتا ہوں کہ کتنے تو نے قتل کروائے؟ کیا تم پھر لوگوں کو بھی رائٹ دیتے ہو کہ تمہیں وہ لندن میں آ کے تمہارے گینڈے جیسی گردن کاٹیں، تمہارا سور جیسا جو جسم ہے اس کو کاٹیں؟ تو ایک انتہائی وہ
घिनौना घटिया तरीन शख्स है कि तू चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो ताकि तुम उन अपने बापों को खुश कर सके जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। लेकिन हमारे अवाम में कुछ शऊर है कि वो इन चीज़ों को देखते हैं। तुम्हें तो लंदन में बैठ के पूरी तरह ये श्योरिटी है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसी बिना पे लंदन में बैठ के तुम हमेशा बक बक करते हो, बकवास करते हो, कभी किसी के खिलाफ कभी किसी के खिलाफ। क्या तूने ये नहीं सोचा कि हर शख्स डरने वाला नहीं? कराची के बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख के डर जाते हैं कि तुम्हारे टेररिस्ट उनको या तो शहीद कर देते हैं या उनको जख्मी करके फॉर एवर माजूर बना देते हैं। लेकिन अल्ताफ हुसैन, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। इंशाअल्लाह मैं पूरा ये काम और ये वादा के साथ कर रहा हूं कि एक दिन तुम्हें कटहरे के अंदर खड़ा करूंगा और तुम्हें पूरी की पूरी सजा दिलवाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। अल्ताफ हुसैन, तुमने हमेशा हराम खाया क्योंकि आज तक तूने कभी 2 वक्त की रोटी कमाई नहीं। नाजरीन, इसकी एक पिक्चर है, उसको पहले मुलाजा कीजिए, बकाया बाद में करते हैं। नाजरीन, आपने अल्ताफ हुसैन की तस्वीर देखी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस शख्स का साइज क्या होगा। जो इंसान मेहनत करे, कोई काम करे, तो वो उसका वजन इस अंदाज में या इतनी स्पीड में नहीं बढ़ता। ये शख्स हराम करता है, हराम ही खाता है और हराम ही बोलता है। जैसा कि अल्ताफ हुसैन खुद टीवी पे आके बकता रहता है, इसी तरह इसके अपने करिंदे किस किस्म की किस लेवल पे जाके बकवास करते हैं। दूसरे मानों में आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या ये डिजर्व करते हैं कि इनको इज्जत दी जाए, जो कि खुद इतनी घटिया जुबान बोले। लेकिन इसकी माइक बंद करो, फिर मेरी बात सुनो। ठीक है, इसको बोले अपने इसकी बैटरी निकालो, इसके मुंह बंद करो, फिर मेरी बात सुनो। इसके अंदर दम है तो तुम्हारे पास करने के लिए, और वो ये खामोश हो जाइए और बारी बारी बात कीजिए। जी, और ये बार कह रही हूँ, बारी बारी बात कीजिए। मुस्तफा कमाल साहब फरमा दीजिए। पॉलिटिक्स नहीं होगी, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये जानवर लोग हैं, ये इनके कायदीन जानवर है। ये बात कर रहे हैं मेरे कायद के खिलाफ, ये मेरे कायद के ऊपर जो बात कर रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल से निकला है। ये जर्नैलों की गोद में बैठने वाले पता नहीं गोद में बैठ के क्या क्या करवाए लोगों ने, दूध पिए, उनकी पैदावार है ये। और ये तो जहां जहां जाते हैं, ये जहां जाते हैं गैर कानूनी काम करने पे, गैर कानूनी तौर पर रहने पे, अपनी बेटियों को हवाले करके आते हैं। ये इनके घर में इनका एडीसी था, वो एडीसी इनकी बेटी को उठाकर ले गया। इनके खिलाफ जब ये ऑपरेशन हुआ है, जब रेड्स हुई हैं इनके घरों के ऊपर, तो इनके घरों से जो है वो अजीब अजीब तरह की चीजें निकली हैं। ये बात करते हैं, ये लोगों को भट्टियों में डालने वाले लोग, ये जानवरों का रोल प्ले करने वाले लोग मेरे कायद के खिलाफ बात करते हैं। तो अगर बात होगी तो फिर बात तो ऐसी जाएगी कि, और ये बात करता है कराची आएगा, ये इसकी ऐसी की तैसी ये कराची आए और ये जुबान इस्तेमाल करे, ये एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये बात करते हैं कराची आएगा, ये कराची इस टोन में आएगा, ये इसके फरिश्ते भी नहीं निकल पाएंगे बाहर कराची से बाहर। ये बात करेगा तो फिर ये मैं बताता हूँ उल्लू का पट्टा। अरे मुस्तफा कमाल साहब, आप क्या ये बात करेगा तो फिर ये मैं बताता हूँ उल्लू का पट्टा। अरे मुस्तफा कमाल साहब, आप क्या मुस्तफा कमाल, जिन्होंने हर फील्ड के अंदर कमाल कर दिखाया, चाहे वो मेयरशिप हो, चाहे कत्लो गारत हो, चाहे गाली गलोच हो। नाजरीन, क्या पाकिस्तान के अंदर
जिन वडेरों के खिलाफ अल्ताफ हुसैन बकबक करता है, मौलवियों के खिलाफ बकबक करता है या दूसरे सियासी लोगों के खिलाफ बकबक करता है, कभी उन्होंने भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए? कभी नहीं। ये इंतहाई घटिया तरीन लोगों की टीम है जो कि आपको हाईजैक करके बैठी है, आपको ब्लैकमेल करती है और अपने मफाद हासिल करती है। अब मुलाहिजा कीजिए इनके अगले लीडर का। वसीम आफ्ताब हुकूक निस्वां के पैगंबर 90 पर रात के वक्त कपड़े उतार कर लोगों के घरों में फोन करते हैं। ये नहीं देखते कि ये शादीशुदा है, ये नहीं देखते कि ये कुंवारी है। पार्टी के दोस्त जमाई की वजह से जबरदस्ती इज्जतें लूटते हैं। लोग कुछ अपनी इज्जत की वजह से खामोश हो जाते हैं और कुछ जो शिकायत करते हैं उनको ये या तो खुद खामोश कर देते हैं गोली से या पार्टी टाल मटोल से काम लेती है और उनको मजबूर करती है कि अदालत का रुख ना करें। वसीम आफ्ताब की अपनी 5 बेटियां हैं। कभी भी इस शख्स को शर्म नहीं आई कि एक दिन इसके गुनाह उन बच्चियों के सामने भी खुदा न खास्ता आ ना जाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन आएगा कि वो लोग जिनकी बच्चियों के साथ ज्यादतियां हुई, वो लोग, उनके बच्चे इस वसीम आफ्ताब को छित्तर मारते हुए, जूते मारते हुए 90 से बाहर निकालेंगे और इनका सर तबले की तरह बजेगा। बाबर गौरी, दुनिया का फ्रॉडिया तरीन शख्स, एक हलीम फरोश जिसको वो जगह नहीं मिलती थी जहां पे वो देग रख सके, आज वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर क्या बाहर भी मुख्तलिफ कारोबार प्लाजों का मालिक है। कराची में नजायज कब्जे करना या ज़बरदस्ती दोस्त जुमाई से लोगों की जगह खरीदना या उनके ऊपर कब्जा करना, ये इनका शेवा है। अल्ताफ हुसैन हमेशा कहता है कि उसका कोई रिश्तेदार सियासत के अंदर नहीं है। नाजरीन, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, बाबर गौरी अल्ताफ हुसैन की बहन के नंद के बेटे हैं और वो सियासत के अंदर मौजूद है और वो फुल फ्रॉडिया और हर किस्म का धोखाधड़ी और शराब, जुआ, यानी कि जो कुछ भी आप सोच सकते हैं ये उसके अंदर इन्वॉल्व है और इसका पूरे का पूरा शेयर अल्ताफ हुसैन को मिलता है। और अमेरिका जब आप गए तो तब भी आपने वहाँ पे भी बड़ा सारे मुश्किल काम किए, मतलब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा, टैक्सी चलाई, वेटर के तौर पे काम किया, सारे सब। हैदराबाद से रिजवी बहुत सॉफ्ट स्पोकन झूठ बोलने वाले हैं। टीवी पे बैठते हैं तो बड़े धीमे लहजे में जर्नलिस्ट को देखते हुए उसी हिसाब से लंबे से लंबा या छोटे से छोटा झूठ बोलते हैं। बहुत गरीब थे, कोई काम धंधा नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन आज पता नहीं क्यों और कैसे इनके पास वो प्रॉपर्टी है, वो बिजनेस है और प्रॉपर्टी भी ऐसी जिसके सर्वेंट क्वार्टर्स और बाथरूम भी एयर कंडीशन है। टीवी पे हमेशा इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन बजाते खुद इनकी हरकत क्या है। टीवी पे अगर पूछा जाए कि आप लोगों को हकूक क्यों नहीं दिलवाते तो यही बहाना बनाते हैं कि इनके पास पावर नहीं है। जब पावर नहीं है तो फिर हुकूमत में क्यों बैठे हैं, लेकिन जब अपनी जात की बात आती है तो फिर इनके पास कैसे पावर आती है। जरा मुलाजा कीजिए ये वीडियो। कानून तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए और जरूरी है कि इस ज़मीन में अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कोशिश की जाए। नोटिफिकेशन लाओ, देखो मैं नौकरी खा जाऊंगा तुम्हारी, ये मुझे नोटिफिकेशन लाओ, नोटिफिकेशन लाओ भाई। किधर है ये, कैसे उठाई गाड़ी?
अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद इन्होंने कहा कि जी अगर टारगेट किलिंग की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। ये इन्होंने मुझे कहा मुखातिब होके। किसने कहा सर? गाना अंदाज में कहा। तो ये स्टाइल इनका, ये जो कराची में स्टाइल है, ये यहाँ पे इस्लामाबाद में ये काम करना चाहते हैं। सर आपको किसने धमकी दी? किसने धमकी दी? नाम लेके बताइए, किसने धमकी दी आपको सेनेटर साहब? जी किसने धमकी दी? ये वसीम साहब, ये जो आपके सामने बैठे हुए, इन्होंने दी। वसीम अख्तर। नाज़रीन, आज के एपिसोड के मेरे आखिरी हीरो वसीम अख्तर, ये बहुत ज्यादा चर्स पीते हैं। कराची के 2 SHO इनके सप्लायर हैं। छत पे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं और अपने सूटे का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये सूटा लगा लें तो फिर जब ये बोलते हैं तो कभी भी किसी की माँ बहन की इज्जत को भी नहीं छोड़ते। इनके साथ खुद मकाफत अमल क्या हुआ इसका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक की माँ बेटी एक जैसी होती है। इन लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती कि जब टीवी पे बैठे या अदरवाइज पब्लिक में खड़े हों तो किसी की भी किरदार कशी करने से बाज नहीं आते। नाजरीन, जिन वडेरों को ये क्रिटिसाइज करते हैं तो आपने इस एपिसोड में और पिछले एपिसोड में आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि ये लोग बजाते खुद घटिया तरीन लोग हैं और उंगलियां दूसरों पर उठाते हैं। और सबसे बड़ा करैक्टरलेस और हकीकत में गंदा तरीन शख्स अल्ताफ हसन बजाते खुद है। आज का एपिसोड मैं यही ख़त्म करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।